Students, after the study of about the intensities of the ultrasounds, now we will discuss about the attenuation process of the ultrasound waves. We know that when any type of the waves are traveling through the medium, the energy will be dissipated or the energy will be lost. So that's why this process is called the attenuation of the waves intensity of the wave energy. तो इसी तरह से जब अल्ट्रासाउंड्स किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में, फॉर एग्जांपल एयर में या फिर बोन से या फिर सॉफ्ट टिश्यू से या फैट से पास होंगी, तो डेफिनेटली उनमें भी एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि एनर्जी मीडियम पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है इट विल बी लॉस्ट. तो उसमें एटेन्युएशन की वजह से जो ट्रांसमिटेड या फिर दूसरे एंड पे इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड रिसीव होगी, that will be less as compared to the incident intensity of the ultrasound. तो उसके लिए हम ये सपोज करते हैं, first of all I am writing here, what is attenuation? It is the power loss. Or the signal loss. Okay. तो उसके लिए हम एक मीडियम सपोज करते हैं, जस्ट लाइक द बोन और द एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जस्ट लाइक हार्ट, किडनी, लिवर एंड एनीथिंग एल्स. तो हम यहाँ पर कोई भी एक मीडियम सपोज करते हैं, एंड इट इज़ द बीम ऑफ द इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड वेव्स. दोज हैव द इंटेंसिटी I, for example, or I naught. And when these ultrasound waves are passing through the medium, due to the energy absorption in the particles of the medium, the intensity of the ultrasound will be attenuated or energy will be lost. तो जो दूसरे एंड पर हमें इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड रिसीव होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी. ओके, तो बीम ऑफ द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड वेव्स हैज़ द इंटेंसिटी आफ्टर द attenuation process. For example, it is I. It is denoted by I, and the thickness of the medium is denoted by X. तो ये जो हमारा प्रोसेस है एटेन्युएशन का, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है. मतलब इसके लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन कैलकुलेट द decrease in the intensity or the received intensity of the ultrasound beam on the other end after the attenuation process by this formula, like I is equals to I naught into e power minus mu x, where I naught shows the intensity of the incident waves and I shows the intensity of the received waves on the other end after passing through the medium, where mu is equals to mu is called the absorption coefficient, and this absorption coefficient depends on the medium used through which the ultrasound waves are passing. तो फैट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की. वैसे डिफरेंट बुक्स में इसके लिए अल्फा साइन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अल्फा हम रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी, वहाँ पर हम यूज़ कर चुके हैं उसके स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस के फॉर्मूले में. तो इस तरह से हम यहाँ पर अल्फा यूज़ नहीं कर रहे, तो वी आर यूजिंग हेयर द नोटेशन म्यू. दोनों का मतलब एक ही होगा. डिफरेंट बुक्स में अल्फा यूज़ करते हैं और डिफरेंट बुक्स में म्यू यूज़ किया हुआ. तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है ये बेसिकली डिपेंड करेगी किस पर, डेंसिटी और द एकूस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडिया पे. तो जिस तरह से फैट, बोन्स एंड स्किन एंड एयर, ऑल दीज मीडियम्स हैव द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट्स कि उनमें इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड किस रेट से एब्जॉर्ब हो रही है. अब यहाँ देखें कि we have the two mediums. In case of the two media, now it is a particular medium or the organ of the body that is denoted by M1. For example, हम यहाँ पर suppose कर लेते हैं कि it is tissue, soft tissue, और
now we have the second medium just like the bone, and it is the boundary of the between the two media, that is between tissue and the bone. अब यहाँ पर अगर हम एक particular intensity of the incident ultrasound waves use करें, that is denoted by I naught, and due to the thickness of the soft tissue that is denoted by X, तो यहाँ पर जो intensity receive होगी on the other boundary or on the other end of the soft tissue or the organ used, it will be less as compared to the incident intensity, क्योंकि यहाँ पर attenuation process होगा, and we can show it by I1 for example. और फिर उसके बाद due to the boundary between the two media, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, मतलब कुछ इंटेंसिटी जो है वो ट्रांसमिट होगी ऑन टू द थ्रू द अदर मीडियम, द सेकेंड मीडियम, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो वी कैन शो द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बाय IT एंड द इंटेंसिटी reflected back in the same medium by IR. So we can use here the formula as we have already discussed about it, कि intensity according to the law of conservation of energy, कि incident intensity, that is I1, is equals to the IR, the reflected amount of intensity of incident waves, reflected waves, and IT, the transmitted intensity. We can use here this formula as well. अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर हम I1 की क्वांटिटी फाइंड करना चाहें कि हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स वी आर रिसीविंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट मीडियम, तो ये इक्वल होगी किसके, I1 इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू e पावर माइनस म्यू एक्स. एज वी हैव this formula, I is equals to I naught into e power minus mu x. okay. अब इसके बाद ये देखें कि यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स है, दैट इज IR, अब ये वापस इसी मीडियम में से पास हो रही है, तो हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फिर एटेनुएटेड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एटेनुएशन हाउ मच इंटेंसिटी वी विल रिसीव ऑन द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट मीडियम. It can be denoted as I2. It is the received intensity जो हमारे अल्ट्रासाउंड प्रोब में रिसीव होगी, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. That is by using the same formula, I2 is equals to the IR into e power minus mu x. क्योंकि I2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इंसिडेंट मतलब जो मेन इंटेंसिटी ऑफ द वेव होगी, दैट इज यूज्ड एज IR, क्योंकि यही एटेनुएट होके I2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर ये रिसीव होगी हमें. तो इस प्रोसेस के थ्रू बाय दिस कैलकुलेशन और बाय दीज फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड आउट द I2 वैल्यू. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यार ये IR हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो IR फाइंड करने के लिए क्योंकि हम I1 तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये IT की वैल्यू होनी चाहिए टू कैलकुलेट द IR, और IR की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम I2 कैलकुलेट कर सकते हैं. और कुछ केसेस के अंदर हमें यहाँ पर I2 का रेशो भी गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड, दैट इज I नॉट. ये सारा प्रोसेस जो है वो हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड ये बेसिकली डिपेंड करती है किस पर, एक तो मीडियम की अकूस्टिक इम्पिडेंस पे, दैट मीन्स डेंसिटी पे, और दूसरा अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी पे कि हाउ मच फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वी आर यूजिंग हियर. ओके, थैंक